آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے کراچی سمیت صوبے کے 29 اضلاع کو زکوٰۃ فنڈ سے 11 کروڑ 14 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ رقم رواں ماہ میں مستحقین میں تقسیم کی جائے گی۔ اس حوالے سے آزاد نوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آزاد، ہمیں بتائیے گا۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے صوبے کے 29 اضلاع کو زکوٰۃ فنڈ سے 11 کروڑ 14 لاکھ روپے جاری کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ زکوٰۃ نے باضابطہ طور پر یہ رقم کی منتقلی تمام اضلاع کو کر دی ہے، جس میں کراچی شرقی کو 67,68,664 روپے جاری کیے گئے ہیں، ضلع غربی کراچی کو 91,05,836 روپے، ضلع جنوبی کراچی کو 41,67,474 روپے جاری کیے گئے ہیں، ضلع وسطی کراچی کو 69,14,598 روپے جاری کیے گئے ہیں، ضلع ملیر کراچی کو 46,73,230 روپے جاری کیے گئے، ضلع کورنٹی کراچی کو 57,14,820 روپے جاری کیے گئے، ضلع حیدرآباد کو 51,19,944 روپے جاری کیے گئے، ضلع مٹیاری کو 17,89,084 روپے جاری کیے گئے، جبکہ ضلع محمد خان کو 15,75,000 روپے 196 روپے جاری کیے گئے ہیں، ضلع ٹنڈو ولایت کو 19,46,158 روپے جاری کیے گئے، ضلع بدین کو 41,97,552 روپے جاری کیے گئے، ضلع سے ٹھٹا، داتو، جامچرو، ویکو خاص، تھرپارکر، عمرکوٹ، سانگڑ، لارکانہ، کمبر شرارکوٹ، جیکاباد، کشمور، شکارپور، سکر، خیرپور، شہید بریدرآباد، نوشرہ فیروز گھوٹکی اور سجاور ضلع کو بھی رقم جاری کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ آزاد نوہریو۔ سندھ کابینہ کا آج حلف لینے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں 10 رکنی کابینہ حلف اٹھائے گی، تو سندھ کابینہ کا آج حلف لینے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں 10 رکنی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ مزید جانتے ہیں ہم عاجز جمالی سے۔ جی عاجز۔ جی دیکھیں، ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آج شام کو گورنر ہاؤس میں سندھ کابینہ حلف اٹھا رہی ہے۔ 10 سے 11 وزراء کے نام ہیں اس میں۔ جو سینئر سابقہ وزراء ہیں، ناصر حسین شاہ، سعید غنی، شرجیل انعام میمن، عذرا پیچو، سردار شاہ، ان کے نام سندھ کابینہ کے لیے گشت میں ہیں۔ ویسے تو بتایا جا رہا تھا کہ 12 سے 15 رکنی کابینہ ہوگا، لیکن آج ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ آج شام کو افطاری سے قبل گورنر ہاؤس میں سندھ کابینہ کی تقریب حلف برداری ہوگی۔ البتہ گورنر ہاؤس ابھی تک باقاعدہ طور پر اس کی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ آج شام گورنر ہاؤس میں سندھ کابینہ کی تقریب حلف برداری ہے۔ جی عاجز بتائے گا کہ کس کو کون سی وزارت ملنے کا امکان ہے آج؟ جی دیکھیں، جو اب تک نام سامنے آئے ہیں ان میں ناصر حسین شاہ کا نام ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بلدیات کا ان کو وزارت دی جا رہی ہے۔ آغا سراج درانی کا نام ہے۔ شرجیل انعام میمن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اطلاعات کی وزارت ان کو دی جا رہی ہے۔ عذرا پیچو کو صحت کی وزارت دی جا رہی ہے۔ سردار شاہ کو تعلیم کی وزارت دی جا رہی ہے۔ سعید غنی کے بارے میں ابھی 2 وزارتوں کے نام بتا رہے ہیں۔ لیبر کا نام بھی چل رہا ہے، کہیں کچھ اور وزارتوں کے نام چل رہے ہیں۔ البتہ پورٹ فولیوز کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ پہلے 10 سے 12 رکنی کابینہ کا حلف ہوگا، اور آج شام ہی اس بات کا امکان ہے کہ اس کا پورٹ فولیوز کا قلمدان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آج ہی جاری ہو جائے۔ جی اچھا عاجز، یہ بھی بتائیے گا کہ سینٹ میں پیپلز پارٹی کو کتنی نشستیں ملنے کی توقع ہے؟ جی دیکھیں، سینٹ میں صوبہ سندھ سے 12 سینیٹرز ریٹائر ہو گئے ہیں، جن میں 10 پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، 2 اپریل کو اس سینٹ کا الیکشن ہے۔ سندھ اسمبلی میں 12 نشستوں پہ انتخاب ہوگا۔ اس میں امکان یہ ہے کہ 10 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملیں گی اور 2 MQM پاکستان کو ملیں گی، چونکہ سنی اتحاد کونسل کی سندھ اسمبلی میں نشستوں کی تعداد صرف 9 ہے، تو امکان ہے کہ شاید سنی اتحاد کونسل کو کوئی بھی سیٹ نہ ملے۔ البتہ 10 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملنے کا امکان ہے۔ جی سندھ کابینہ کا آج حلف لینے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں 10 رکنی کابینہ حلف اٹھائے گی۔ تفصیلات سے عاجز جمالی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔
आगे बढ़े और आपको बताएं SSGC के सहर इफ्तार में गैस फरहमी के दावे धरे रह गए। रमजान मुबारक की पहली सहरी भी गैस बंदिश की नजर होगी। भीमपुरा, आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, पान मंडी, घास मंडी और ली मार्केट के इलाके भी गैस से मुतासिर है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। सुई सदरन रमजान में भी शहरियों को गैस देने में नाकाम। शहरियों को पहली सहरी की तैयारी में मुश्किलात का सामना रहा। भीमपुरा, खारादार गार्डन, आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, पान मंडी, ली मार्केट, नॉर्थ नाजमाबाद, कोरंगी, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर रहे। शहरियों ने गैस खींचने वाली गैर कानूनी मशीन का इस्तेमाल तेज कर दिया। बोले गैस पूरा दिन नहीं मिलती और 2 माह का बिल 6,000 रुपए बेच दिया गया, कहाँ से भरें। अब हम लोगों को बिल्कुल इतनी परेशानी हो रही है कि ऐसा लगता है कि बस लकड़ियाँ जलाए बंदा, क्योंकि इतना बिल कौन भरेगा। पूरा साल हो गया, बिल 2 महीने का 6,500 रुपये, 6,730 रुपये का बिल है। यूनिट इतने जल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या 1,000 रुपये का यूनिट लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरी जानिब SSGC ने सहरी और इफ्तारी में गैस की फराहमी यकीनी बनाने का ऐलान किया था, जिस पर मुकम्मल अमल दरामद होता दिखाई नहीं दिया। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज कराची पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आला सिंध समेत दीगर से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सिंध काबीना के अरकान के नामों को हतमी शक्ल भी देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज कराची पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आला सिंध समेत दीगर से मुलाकात करेंगे। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक से। ताहा, बताइएगा कितने रोज़ा दौरे पर कराची आ रहे हैं और ये भी बताइएगा कौन कौन से अहम मुलाकातें स्केड्यूल हैं आज। जी बिल्कुल, देखिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज कराची पहुंचेंगे। ज़राए का ये कहना है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आला सिंध समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे, जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सिंध काबीना के अरकान के नामों को हतमी शक्ल देंगे, जो कि एक अहम जो है आज पेशरफ्त है। इसके ऊपर मज़ीद भी खबरें हैं और मज़ीद पेशरफ्त ये है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो हतमी शक्ल देंगे आज। साथ ही सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस दौरे के अंदर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना पर भी उनकी जो है हाजिरी मुतवक्की है, जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध इस्तकबाल भी करेंगे और उनके साथ खुसूसी मुलाकात भी है। जी बहुत शुक्रिया ताहा मलिक। यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी आटे के असूल के लिए रुल गए। शहरियों का शिकवा है कि कई दिन गुजरने के बावजूद आटा गायब है। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे। काविश, बताइएगा। बिल्कुल, देखें यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शहरियों को ताहाल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आटा जिस पर सब्सिडी का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर आटा नायाब है। चीनी की बात की जाए तो चीनी होलसेल की सतह से, रिटेल की सतह से भी यहाँ पर महंगी फरोख्त की जा रही है। लोगों को दुश्वारियाँ भी है, कई ऐसी चीज़ें जिस पर रिलीफ भी है। बात करते हैं, बताएगा कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर रिलीफ नजर आया, क्या कहेंगे? छोटी मोटी चीज़ पर है जो ज़रूरियात की नहीं है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें है उसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ मिल जाए। चीनी पर है, लेकिन वो चीनी भी जो है मार्केट रेट पर ही है, कोई इतना सस्ता तो नहीं। अच्छा, देखते हैं आटा जो है वो बुनियादी ज़रूरत है, लोग घरों में खाना भी बनाते हैं। ये ज़रूरत की तो जब तक ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो इंसान कैसे घर चलाएगा। तेल, हाँ तेल का मालूमात कर रहे हैं तो वो भी रेंज में नहीं आ रहा। दालें वगैरह लेनी है तो वो भी कंप्लीट नहीं है। दालें वगैरह तो इंसान लेना रोज़मर्रा की चीज़ें। कीमतों में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? कोई वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत सब्सिडी दी गई है, कोई फ़र्क है रेट वगैरह में? नहीं, ऐसा कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा बिल्कुल भी। बिल्कुल, देखें लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न भी पाए जाते हैं। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो आटा है वहाँ पर रिलीफ का ऐलान तो नहीं किया गया था। इसी के साथ चीनी कहा जा रहा था कि पहले से ही सब्सिडी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद आटा यहाँ पर नायाब है। इसके साथ चीनी शहरियों के कंसर्न है कि इस वक्त रिटेल की सतह में 145-150 रुपये मिल रही है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर 155 रुपये पर चीनी फरोख्त की जा रही है। जबकि दालों की मुख्तलिफ इकसाम है, किसी में शॉर्टेज है, तो शहरियों का मुतालबा है कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। माह रमज़ान में वोटर कॉरपोरेशन मसाजिद में मुफ्त पानी फराहम करने के लिए मुतहरिक। सीवरी सिस्टम भी ठीक रखने के लिए इकदाम जारी हैं। तफसीलात हम जान लेते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा।
जी बिल्कुल, माह रमज़ान के मौके पर वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से तमाम मस्जिद और दीगर दरसगाहों में मुफ्त पानी की जो है वो सप्लाई यकीनी रखी जाएगी। साथ साथ सीवरेज के निज़ाम के हवाले से भी ठोस इकदाम जो है वो किए गए। डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमल है, जिन मकामात पे जिन इलाकों में पानी की सप्लाई है वहाँ पर जो है वो एक्सीएन को हिदायत की गई है कि पानी जो है वो उसकी सप्लाई को यकीनी रखा जाए। स्टाफ ऑफिसर एमडी वाटर कॉरपोरेशन के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सर बताइएगा क्या फ़ैसले किए गए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए CEO वाटर कॉरपोरेशन सैयद सलाहुद्दीन अहमद साहब ने वाज़िया तौर पे अहकाम जारी किए हैं चीफ इंजीनियर वाटर को और दीगर एक्सीएंस को वाटर को कि रमज़ान और मुबारक के महीना में किसी सूरत भी मसाजिद में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में टैंकर्स के ज़रिए या डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करके जो है वो पानी की जो फ्राहमी है वो यकीनी बनाई जा रही है। जहाँ तक आपने कहा कि सीवरेज का, तो चीफ इंजीनियर सीवरेज और तमाम एक्सीएंस सीवरेज को ये अहकाम वाज़िया तौर पर जारी किए गए हैं कि मसाजिद और दीगर जो नज़दीक तरीन इलाके हैं वहाँ पे सीवरेज का जो सिस्टम है उसको बेहतर से बेहतरीन किया जाए। इस सिलसिले में अगर कहीं पे लाइनों की चेंज होने की ज़रूरत है तो उनकी जो वो रिपोर्ट्स हैं वो बना के तो MD ऑफिस में भेजी जाएँ ताकि फ़ौरी तौर पे उन पे जो है वो काम को शुरू करवाया जा सके। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर किसी मस्जिद को पानी चाहिए हो और वो एक्सीएन उसके राब्ते में ना आ रहा हो तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए उसके लिए जो हमारा हाइड्रेंट सेल है जो जैसा कि आपको पता है कि वो कंप्यूटराइज हो चुका है तो वो वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा MD सेक्रेटेरिएट में भी वो जो है इस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वो दरसगाहें, मसाजिद जहाँ पे तरावी का सिलसिला है, सैर व अफ्तार के टाइम पे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना होता है पानी या सीवरेज के मसाइल के हवाले से, तो फौरी तौर पे MD सेक्रेटेरिएट में जो है वो रब्ता किया जा सकता है ताकि वो परेशानी भी हल हो सके और पानी की सप्लाई भी जो है वो यकीनी रह सके। जी, सहरो इफ्तार में दस्तरखान की रौनक, खजला फेनी की तैयारी का अमल मुनफरिद मगर मेहनत तलब होता है। इसकी तैयारी कैसे की जाती है और किन अज्जा का इस्तेमाल होता है, जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक हो और खजला पेनी ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खजला पेनी की तैयारी का अमल जारी है और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर जो है वो मुख्तलिफ जो हलवाइयों की दुकानें हैं, जो मुख्तलिफ बेकरीज हैं, वहाँ पर इसकी फ़रोख्त का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में इसके मुख्तलिफ रेट्स हैं। खजला पेनी जो है तकरीबन 640 रुपये से लेकर 750 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त की जा रही है। खजला पेनी की जो तैयारी है इसमें मैदा इस्तेमाल किया जाता है, देसी घी इस्तेमाल किया जाता है और ख़ासा जो है वो मेहनत तलब काम है। इसको जो है वो पकाया जाता है घी के अंदर और जब ये सुर्ख हो जाता है, ये आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो खजला है ये यहाँ पर बन के तैयार हुआ हुआ है और इसी के साथ साथ फेनी भी जो है वो बन के तैयार हुई हुई है और बड़े पैमाने पे इसकी तैयारी का अमल जो है वो खासे पहले से ही शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो हम बात करते हैं राम सवामी पे इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मालिक जो कि खजला फेनी अपनी निगरानी में तैयार करवा रहे हैं। बुरे भाई, क्या सूरत हाल है खजला फेनी की तैयारी के हवाले से? आज एक दिन में कितनी तैयार की जाती है और क्या टारगेट है आपका? अच्छा, बात यह है कि कारीगरों पर मनसर है। एक दिन में तकरीबन 5 मन माल तैयार किया जाता है फेनी और खजले का मामला तकरीबन 3 मन एक दिन में तैयार किया जाता है। इस वक्त खजला फेनी 640 रुपये किलो है और पिछली मरतबा था तकरीबन 580 रुपये किलो। अच्छा, ये बात तो है कि भाई कारीगर पंजाब से आते हैं पर अब यहाँ पे भी लोग सीख गए हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये मैदा इस्तेमाल किया जाता है और घी थोड़ा सा, इसमें हस्बे मामूल तेल इस्तेमाल होता है और नाम चारे के लिए घी और मैदा, जो आटा मैदा जो गूंदा जाता है पानी में गूंदा जाता है पानी के साथ और फ्राई होता है घी में। जी हाँ, ये थे बुरे भाई जो कि खजला पेनी तैयार करवा रहे हैं। उनका कहना है कि रमज़ान मुबारक में खासा जो है वो इसकी जो है वो रुझान ख़रीदारी का बढ़ जाता है। 5 मन और 3 मन जो है वो खजला पेनी जो है वो तैयार की जाती है ये रोज़ाना की बुनियादों पर और इसके सिलसिला जो हम देखते हैं कि पूरे रमज़ान जारी रहता है और लोगों की जानिब से खजला पेनी जो है वो खासा जो है उसकी ख़रीदारी में देखने में आती है और उसके साथ साथ लोग जो है वो लाजमी अपने सैर रफ्तार में खजला पेनी इस्तेमाल करते हैं। जी, रमज़ान में हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो मुकम्मल रोज़े रखे, ताहम ज़ियाबतीस के मरीज़ इस सिलसिले से परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। माहिरीन सेहत ने ज़ियाबतीस के मरीजों को रोज़ा रखने का मशवरा दे दिया।
मुबारक में ज़ियाबेट्स के मरीजों को ज्यादा एहतियात करना होगी। माहिरीन सेहत ने खबरदार कर दिया। बताया कि ज़ियाबेटीज के मरीज को खून में शुगर की सतह कंट्रोल करने के लिए मुनासिब खुराक लेना चाहिए। डॉक्टर उबैद का कहना था कि शुगर के मरीजों का लेवल कभी हाई तो कभी लो रहता है। मरीजों को अपने मुआलिज के मशवरे के बाद रोजा रखना चाहिए। जो है वो रमज़ान में कोई रुकावट नहीं है, जो लोग रोज़ा रखना चाहते हैं वो रोज़ा रख सकते हैं। डॉक्टर उनकी ये हेल्प कर सकते हैं कि भाई आप कौन सी दवाई किस वक्त लें, है ना। अगर जिनकी मैंने अभी अर्ज़ किया कि जिनकी शुगर नॉर्मल है उनको लोगों को दवाई में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। जिनकी शुगर पहले बढ़ी हुई है उनकी दवाई में रद्द-बदल की ज़रूरत है, उनको दवाइयाँ कुछ एक्स्ट्रा ही लेनी पड़ेंगी। अब बात यह है कि 12-13 घंटे का रोज़ा है तो दवाइयों में एडजस्टमेंट की कौन सी दवाई सुबह में ले लें, कौन सी दवाई अफ्तार के बाद ले लें। और बाद लोग अफ्तार अलग करते हैं, रात का खाना अलग खाते हैं, तो कौन सी दवाई अफ्तार के बाद लें, कौन सी दवाई रात खाने के बाद लें, ये एडजस्टमेंट उनका डॉक्टर कर सकता है। इफ्तार के दौरान खाने का सही ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक बार जब आप शाम को इफ्तार कर लें तो इसके बाद सेहत बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएं। माहिरीन का कहना है कि शुगर के मरीजों को चाहिए कि वो रोजे के दिनों में अपनी शुगर को जब मौका मिले तब चेक करें और जरा भी शक हो तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। अब कुछ बात करेंगे शहर कायद के मसाइल की। तो नाज़रीन, शहर कायद के हल्के कोरंगी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना कि सीवरेज सिस्टम, टूटी फूटी सड़कें मकीनों के लिए अजियत बन गई। अहले इलाका ने शिकवा किया कि वोट लेने हर कोई आ जाता, मसला हल करने को कोई नहीं आता। इसी पर तफसीलात जानेंगे। हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर, आप बताइएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और शहरियों के मसाइल के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी में मौजूद हूँ। कोरंगी यकीनी तौर पे जो है वो एक बड़ा हल्का है। मुख्तलिफ जो है यहाँ पे नंबर लगते हैं, 1 से 6 तक कोरंगी के नंबर जो है वो जाने जाते हैं और इलाकों के नाम से जो है वो यहाँ पर ख़ास तौर पे जाना जाता है। 100 क्वार्टर हो, कोरंगी ई एरिया हो या फिर सेक्टर्स हों, इस तरीके से जो है वो कोरंगी के इलाके यहाँ पर जो है वो नामी गिरामी हैं। लेकिन इस वक्त जो है मैं कोरंगी सेक्टर नंबर 50 और ई एरिया में मौजूद हूँ। मेरे अकब में मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि कुछ ये सूरत हाल है कि यहाँ पे अरसा हो गए इस गंदगी को। इलेक्शंस हो गए, आम इंतखाबात हो गए, बल्दियाती इंतखाबात हो गए हैं। यहाँ के लोगों की ये गुजारिश है कि किसी तरह जो है इनके मसाइल को हल किया जाए। इन्हें नहीं फ़र्क पड़ता इस चीज़ से कि बल्दियाती इंतखाबात हो या फिर आम इंतखाबात हो, इनके मसाइल जो है वो झूं के तू रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है वो तमाम यहाँ के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप यहाँ पे बाइक से गुजर रहे थे तो मैंने देखा बड़ी परेशानी से गुजरते, रोजाना यही हाल है यहाँ? रोजाना डेली की बेस पे यही हाल है यहाँ पर। ये सामने कॉलोनी के वेलफेयर वालों का, यहाँ इतने मरीज आते हैं, इतने परेशान होते हैं जिसका जवाब नहीं कोई। सस्ती दवाई देता है, अपने पास से दवाई देते हैं यहाँ पे, लेकिन परेशानी का आलम यह है कि यहाँ लेडीज़ आती है इतनी दवाई लेने, उतनी परेशान होती है, कहाँ खड़े हों कहाँ रुकें। तो आप इस मसले को हल करवाएं। गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है हमारी, यहाँ के इदारों से भी, जो भी गवर्नमेंट में बैठे हैं वो यहाँ के तवज्जो दें। मेन रोड का बुरा हाल पड़ा हुआ है, आप जाके देखें, पानी पानी हो रहा है यहाँ पर। ये रोड तो चलता ही नहीं है, वो रोड है वो चलता है, वहाँ पे डबल वे कर दिया उसको। ये डबल रोड है लेकिन ये रोड बिल्कुल नाकार आई है, पानी पानी, गंदा पानी, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। इसी सूरत हाल में जो है वो यहाँ के लोग रह रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है, किसके पास जाएं? अपनी दरखास्त लेके किसके पास जाएं? यहाँ तो कोई यकीनी तौर पे आप देख सकते हैं कि जो पानी है ये सिर्फ यहाँ पर नहीं या ये टुकड़े पे नहीं, कोरंगी में जगह जगह जो है वो गलियों का यही हाल है, यही सूरत हाल है। अच्छा, आपकी दुकान भी है यहाँ पर, तो किस तरीके से काम मुतासिर होता है आपका? क्या मुतासिर है, किस तरीके से लोग आएंगे इधर काम के लिए? कारोबार पूरा ठप, कारोबार भी ठप है, मस्जिद नहीं जा सकते। अब रमजान के दिन है, आप ये देखे ना क्या हो रहा है इधर। ये बच्चे छोटे, ये स्कूल है सामने, ये किस तरीके से लोग बच्चे जाते हैं वो हमें पता है। और हमारे घरों में गटरों का पानी भरा हुआ है, अंदर आप जाके दिखाएं गटर का पानी भरा, बाथरूम नहीं जा सकते हम लोग। किसको जाके शिकायत करें? जाके उनको बोलते हैं बजट नहीं है, ये उसका काम है, ये उसका काम है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, ये 10 किस्म के बहाने हैं। कौन सा इदारा कहता है बजट नहीं? यूसी के अंदर जाएं आप, यूसी के अंदर बोले बजट ही नहीं है हमारे पास, सुनेगा ही नहीं कोई भी। अभी फला नहीं है, अभी फला नहीं है, किससे आगे शिकायत करें? एप्लीकेशन दिए हुए जमाना हो गया इधर, लेकिन कोई असर नहीं। ये पूरी गलियां पानी से भरी हुई हैं, पीछे गंदी गली पूरी भरी पड़ी है, इधर कोई नहीं है पुरसाने हाल, किसको जाके शिकायत करें? आप ये बताइएगा कि बच्चों को लेके जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पत्थर रखे हुए हैं और बच्चियां भी, अभी मैंने देखा कि हाथ पकड़ के एक दूसरे का जा रही थी, तो बच्चों को लेके बड़ा मुश्किल होता होगा। बड़ा मुश्किल बच्चों का, यहाँ से लेडीज का गुजर बहुत मुश्किल है। ये छोटे बच्चे हैं, सामने स्कूल जाते हैं, रोजाना इसी तरह परेशान होते हुए जाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं परेशानी, वापस स्कूल से आते में परेशानी। आप बताओ क्या करें फिर? यहाँ पर मस्जिद भी आगे मस्जिद है, दो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, यहाँ मदरसे के बच्चे जाते हैं मदरसे के पढ़ने के लिए। यहाँ मदरसे के बच्चे जा ही नहीं सकते, पाक रह ही नहीं सकता ना बंदा। आप मुझे बताओ, अभी रमजान शरीफ शुरू हो गए, अभी हम लोग नमाज के लिए निकलेंगे, रोड क्रॉस करेंगे, चीटें आ गई, खत्म बात। तो हमने ये देखा कि अभी आम इंतखाबात हुए तो उसमें भी कोई असर नहीं हुआ।
सिर्फ वो इंतखाबात वोटिंग की हद तक सब कुछ है, उसके बाद कुछ नहीं है। यहाँ झंडे लग जाते हैं, रोड डल जाता है, गाड़ियाँ चल रही होती है, 50 आदमी आ जाता है कि हमने ये काम करा दिया, उसके बाद कोई नज़र नहीं आएगा। आप अगर यूसी जाओगे तो यूसी जाने के बाद ये होगा, अपने तौर पे प्राइवेट पैसे महल्ले वाले जमा करके अपना काम करा लेंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट का बंदा कोई नहीं आता यहाँ पर। यकीनी तौर पे जो है वो अपने पैसे जमा करके जो है वो अपने मसाइल हल करने के लिए जो है वो लोगों को खुद ही मदद अपनी मदद आपके तहत जो है वो काम करना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हर गली में जो है वो कोरंगी की यही सूरत हाल है। अंदर गलियों में जो है वो हम जा नहीं सकते, लेकिन सूरत हाल जो है वो हर गली की ऐसे ही है। मदरसे जाने वाले बच्चे परेशान है, स्कूल जाने वाले तलबात परेशान है, जो शहरी यहाँ पर काम करते हैं उनका कारोबार ठप हो चुका है। नमाजी गुजरने वाले जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो पाक नहीं रह पाते। साफ की देखा जा सकता है कि पत्थरों की सपोर्ट लगाई हुई है। गलियों की अगर हम बात करें जो गुजरने वाली जगह है कचरे से भरी हुई है, इंतहाई यहाँ पर टापून है कि मेरा अपना खड़ा रहना जो है वो यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। और अब हम देख सकते हैं कि रमज़ान का बाबरकत महीना है तो हर कोई चाहता है कि इसमें साफ़ सुथरा रहे, इबादत करे, लेकिन यहाँ से जो लोगों का गुजरना है वो काफ़ी मुश्किल है। बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, उम्मीदवारों का इनका ये कहना है कि कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर अब आके जो है वो नज़रसानी नहीं कर रहा। जी नो डाउट शहरियों को काफ़ी ज़्यादा अजियत का सामना हम देख रहे हैं कि जहाँ पर आप मौजूद हैं रोड पर किस तरह से सीवरेज का मसाइल है और लोगों को वहाँ से आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर ये बताइएगा कि किस पार्टी के चेयरमैन जो है इस हलके से मुंतखब हुए थे माजी में और अब यहाँ पर कौन है? जी माजी में यहाँ से जो है वो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जो है वो जीते थे। जब हमने यहाँ से 100 क्वार्टर पे आए थे तब हमें ये मालूम हुआ था कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो सड़कों पे थोड़ा बहुत काम करवाया था, लेकिन जो ये अगर हम बात करें सेवरेज का जो यहाँ पे सिस्टम है वो तबाहाल हो चुका है। अब जो है वो एमकेएम के उम्मीदवार जो है वो यहाँ से जीते हैं आम इंतखाबात की अगर हम बात करें, लेकिन अगर हम बात करें कि बल्दियाती इंतखाबात में तो यहाँ से कौन जीता, तो बल्दियाती इंतखाबात में यहाँ से पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जो है वो जीते थे। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो बल्दियाती निज़ाम है वो बिल्कुल भी जो है वो काम नहीं कर रहा। हम ये कह सकते हैं कि जो बल्दियाती इंतजामात हैं वो बिल्कुल जो है वो गफलत का शिकार हैं, यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है। ये भी देखा जा सकता है कि बल्दियाती जो नुमाइंदे उनको फंड मिल चुका है, उनको इख्तियारात मिल चुके हैं, लेकिन आवाम के मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे। इनका ये कहना है कि आम इंतखाबात जब हुए तो उसमें भी जो है वो लोग अपने कैंपेन चलाने के लिए आए, लेकिन किसी ने इनके मसाइल को जो है वो हल नहीं किया। यहाँ के लोगों से बात करते हैं, वो जानते हैं। ये बताइएगा कि आपने जो है वो इलेक्शंस हुए थे तो उसमें वोट दिया था आपने? सारे पूरे इलाके ने वोट दिया था, ख़ास तौर पे इसलिए ख़वातीन तक एक एक देकर आए क्योंकि हमारे इलाके का आप हाल देख लीजिए। ये तो कुछ नहीं है, ज़रा घरों में आके देखें, गटरों में से पानी बाहर आ रहा है। रमज़ान शुरू हो गए, किस तरह रोज़े रखेंगे, किस तरह बच्चे छोटे छोटे स्कूल जा रहे हैं। ये रहा स्कूल हमारे दरवाजे के पास, किस तरह कूद कूद के इतनी परेशानी और बदबू, मच्छर, हज़ारों बीमारियाँ, डेंगू की भी अब सुन रहे हैं फिर से आ गया है। अब आगे हमें क्या करना है? हम खुद परेशान हैं, क्या फ़ायदा हमारा वोट देने का? ख़वातीन जो नहीं निकलती, आपके हमारे आदमियों ने हमें कहा नहीं वोट डालो क्योंकि ज़रूरी है इनकलाब लाना, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? आप यकीन करें 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है, हर कोई परेशान है, हर कोई। और किचन देख लें, बाथरूम आके देखें, हम लोग यहाँ नहाना नहीं हो रहा है, कहाँ जाकर नहाएं धोएं? कपड़े धोना हमारे यहाँ मुश्किल है, कपड़े भरे पड़े हैं, बाथरूम फुल हुए हुए हैं क्योंकि रिटर्न पानी आ रहा है। गंदी गलियाँ नीची हो गई हैं, ऊँची हो गई हैं और घर नीचे हो गए, जिसकी वजह से पानी अंदर आ चुका है। आप अपने कैमरामैन को बोलें हमारे घर में आके देखिए, यही घर है मेरा। अब मैं कितनी परेशान हूँ, छोटे बच्चे हैं, कितनी परेशानी है इस टाइम। पूरी हमारे ये पूरा इलाका इस वक्त बहुत परेशान है। कोई अगर आप अपने इस चैनल के ज़रिए कोई हमारा कर सकते हैं तो ज़रा ये मैसेज हमारा आगे पहुँचाइए कि गटर का मसला हल करवा दीजिए। ये पूरा एरिया हमारा कोरंगी का, कहीं ना निकल सकते हैं ना कहीं आ जा सकते हैं। और ये ईंटों के ज़रिए कूद को, ये अब तो ऐसा लग रहा है या कश्तियाँ छोड़नी पड़ेंगी। क्या फ़ायदा हुआ इस हुकूमत को वोट देने का? इससे तो बेहतर था हम अपने घरों में ही बैठे रहते। इसीलिए दिए थे कि ताकि कुछ तो चेंजिंग आएगी, कहीं तो फ़ायदा होगा, लेकिन हम तो खुद परेशान हो गए। अब आगे रमज़ान शहरी परेशान नजर आ रहे हैं और शिकवा कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आता, वोट मांगने सब आ जाते हैं। अहले इलाका ने ये शिकवा किया है, लेकिन बाद में शहरियों के जो मसाइल है उन्हें कोई हल नहीं करता। हमारी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद थी, अक्सर शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। लाइन्स एरिया में 1 साल से सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। गंदा पानी जमा होने से दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। इस पर हमें आगाह कर रहे हैं मीर कीरियो।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں، جہاں 1 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جو ہے سیوریج کا نظام درست نہیں ہوا. سیوریج کا نظام درم برم ہے. سڑک بالکل ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے. سیوریج کا جو گندا پانی ہے وہ سڑک پر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف علاقہ مکینوں کو جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ یہاں پر جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، جو نمازی ہیں، ان کو بھی کافی مسائل کا شکار سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت ایک شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر، کب سے اس روڈ کی یہ حالت ہے؟ سر یہ تو 1.5 سال ہو گیا. سال بند، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پورا روڈ ٹوٹ رہا ہے، پانی بھر رہا ہے، کاروبار خراب ہو رہا ہے. ہم تو بہت پریشان ہیں. تو یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ لائن ہمارے روڈوں میں بیچ میں سارے گٹر فل ہو رہے ہیں. کوئی دیکھتا ہی نہیں، کوئی لین نہیں ڈالتا. ٹوٹ رہے ہیں، کوئی گر رہے ہیں، مر رہے ہیں لوگ. گاڑیاں گر رہی ہیں، گاڑیاں کلٹی ہو رہی ہیں. لوگ پریشان ہیں اتنے. اچھا، تو اس سے آپ کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے؟ کاروبار ختم ہو گیا سارا، کوئی رکتا نہیں بھائی. پانی دیکھ کے کون رکے گا؟ نماز یہ کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی بولتا نہیں بھائی. سارے ہوٹل والے بیچارے دکاندار سب پریشان. تو کیا آپ نے کوئی شکایت کی ہے مقامی انتظامیہ سے؟ جی کئی دفعہ لوگوں کو بولا، کوئی بھی نہیں سنتا. جی بالکل، آپ نے شہری کی باتیں سنی. ایک اور شہری بھی ہمارے ساتھ موجود، ہم ان سے بھی بات کریں گے. سر، آپ بتائیں کہ کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے اس حوالے سے؟ سر، حکومت سے یہ مطالبہ کریں گے یہ کھڈا بند ہو جائے، میرے بھائی نمازیوں کے لیے آسانی ہو جائے. صحیح ہے نا؟ بہت پریشان ہیں. کل خاتون ایک موٹر سائیکل پہ آدمی لے کے جا رہا تھا، وہ گر گئی. ادھر اس کا موبائل بھی گر گیا، اس کے چوٹیں بھی آئی ہیں. سر، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کو روڈ کو صاف کیا جائے. سر جی بالکل، آپ نے شہریوں کی باتیں سنی. ان کا کہنا تھا کہ ہر روز یہاں کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے. جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کے کپڑے خراب ہو جاتے، جبکہ ان کا جو کاروبار ہے وہ بھی شدید متاثر ہو رہا ہے. تاہم ان کا مطالبہ ہے کہ اس سڑک طور پر تعمیر کروایا جائے. جی، PIDC پل اور للی برج پر لگائی گئی لائٹیں منشا کے عادی افراد چوری کر کے لے گئے. میئر کراچی نے ایڈمنسٹریشن کے دور میں دونوں فلائی اوورز کی تزئین و آرائش کرائی تھی. ہم مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں جنید جاوید سے. دیکھیں جی، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے اپنی ایڈمنسٹریٹرشپ میں 2 فلائی اوورز کو رینیویٹ کروایا تھا اور اس پر جو ہے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. 70 کے قریب خوبصورت فینسی لائٹس لگائی گئی تھی جو کہ اب چوری ہو چکی ہیں. ان دونوں برجز میں ایک PIDC جبکہ دوسرا للی برج شامل ہے. میرے کیمرامین عثمان مصطفیٰ دکھائیں گے کہ وہ فلائی اوور ہے جہاں پر اس طریقے کی لائٹس لگائی گئی تھی اور اس کا باقاعدہ طور پر جو افتتاح ہوا تھا وہ 14 اگست 2021 کو کیا گیا تھا. اب یہ لائن سے جو لائٹس یہاں پر لگی ہوئی تھی، تقریباً 70 سے زائد یہ لائٹس تھی. ایک فلائی اوور کے اوپر وہ تمام لائٹس چوری ہو چکی ہیں. نشئی افراد جو ہے وہ یہاں سے تمام لائٹس اکھاڑ کر لے جا چکے ہیں اور خوبصورتی جو ہے وہ اب ماند پڑ گئی ہے. جبکہ میرے اس جانب اگر آپ کو یہ لے جایا جائے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے اور کچرا کنڈی میں جو ہے وہ نشئی افراد شام کے اوقات میں، رات کے اوقات میں بڑی تعداد میں بیٹھ کر یہاں پر نشہ کرتے ہیں. جبکہ جو یہاں پر کچرا چننے والے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور اپنا کچرا جو ہے وہ سارا یہیں پر لا کر ڈمپ کرتے ہیں. اس میں نہ صرف بلدیہ عظمیٰ کراچی کا بلکہ سندھ حکومت کا بھی جو ہے وہ کروڑوں روپے اس پروجیکٹ میں لگا تھا. اس کی اثر نو جو ہے وہ تزئین و آرائش کی گئی تھی. تاہم اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہاں سے چوری ہو چکی ہیں اور تمام لائٹ چوری ہو چکی ہیں. جی، غیر حاضری پر نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے ملازمین کی تنخواہ میں کٹوتی. غیر متعلقہ افسران اور ملازمین میں کھپائے جانے والے فنکشنل لیبر ونگ کا سخت احتجاج. جماعت اسلامی کی قیادت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے رضوان احمد. جی بالکل، رمضان المبارک میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ملازمین کو ریلیف فراہم کیا جائے، لیکن ناظم آباد ٹاؤن کی بات ہو یا نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کی، یہاں پہ ملازمین کو ریلیف دینے کے بجائے ان کے ساتھ زیادتیوں کا عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے. نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں مختلف ملازمین کی جو ہے وہ تنخواہوں سے کٹوتی کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں مسلم لیگ فنکشنل کی جو لیبر ونگ ہے ان کی جانب سے اعتراض سامنے آیا ہے. ہمارے ساتھ نائب صدر کراچی کے موجود ہیں نجم رضوی، ان سے بات کرتے ہیں. نجم صاحب بہت شکریہ. بتائیے گا نارتھ ناظم آباد میں کیا چل رہا ہے؟
देखें रिजवान साहब, नॉर्थ नाजाबाद में तो जुल्म हो रहा है। जो वहाँ पे लेडीज के साथ अभी 13-14 खवातीन की जो है वो सैलरी जो है वो डिडक्ट की गई। कौन से डिपार्टमेंट की? एजुकेशन डिपार्टमेंट और आपके सेनेट मतलब लाइब्रेरीज की हैं। उनको कभी एजुकेशन भेजा जा रहा है तंग करने के लिए, कभी जो है उनको लाइब्रेरी भेज दिया जाता है। एक ही दिन में जो है 2-2 लेटर निकल रहे हैं। कौन से ऐसे अफसरान हैं जो इन सारे मामले में आप समझते हैं मुलविस? देखिए वहाँ पे उस्मान साहब का नाम आया है सामने, ठीक है, और दीगर और भी अफसरान हैं जो कौन से डिपार्टमेंट? ये मेरे ख्याल से एजुकेशन या उनके जो है वो सिस्टम के अंदर है, वहाँ के चेयरमैन साहब के। नाज़िमाबाद टाउन में क्या हो रहा है? नाज़िमाबाद टाउन में आपने देखा है कि रोडों का क्या हाल हुआ हुआ है। तो टीए पता रहे जो है वहाँ पे जगह जगह लगे हुए, गलियाँ नहीं छोड़ी गई हैं। अच्छा पहले तो ये है कि यहाँ पे जब नॉर्थ नाज़िमाबाद ये नाज़िमाबाद जब टाउन बना है तो यहाँ पे एम्प्लॉइज पहले से मौजूद हैं। तो न्यू कराची से जो बुलवा के यहाँ पे हमारे सरों पे बिठाए गए हैं, ये अफसरानों को यहाँ पे फिक्सेशन भी होई जा रही है, बाकायदा इनकी फिक्सेशन भी हो गई है और उनसे ही जो है उनको एंटी इंक्रोचमेंट में डाल के, और ये जो मामला अभी वीडियोस भी चली थी आपने देखा होगा। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जही के नतीजे में जो अफसरान हैं उनमें से बाज़ अफसरान मनमाने फैसले कर रहे हैं। नाज़िमाबाद टाउन हो या नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, मुलाजमीन की तनख्वाहों से बेजा कटौती हो रही है, जबकि दीगर महकमों में बिगाड़ है। सबसे बड़ा मसला जो है वो नाज़िमाबाद टाउन में तजावुज़ात के हवाले से बताया जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को सफ़र करना पड़ रहा है। मुतालबा किया गया है मुंतखब नुमाइंदों से और इनकी आला क़यादत से कि इस मामले को टैकल करें ताकि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी को जो है वो नाफिज किया जा सके। जी, स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मोहतात, मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 550 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हो गई। मज़ीद जान लेते हैं मार्केट के मज़ीद सूरत हाल अयाज राना से। जी बिल्कुल, जो हम देख रहे हैं कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़, रमज़ान का पहला रोज़ा आज मार्केट में बड़ा मोहतात अंदाज नज़र आ रहा है और सरमाया बड़े क्या सुस्त रवि का शिकार हैं या मोहतात हुए हुए हैं। प्रॉफिट टेकिंग हो रही है क्योंकि 100 इंडेक्स 555 पॉइंट से ज़ायद जो है वो 100 इंडेक्स पे माइनस हो चुके हैं। क्या वजूहत बनी है उसको जानने के लिए हमारे साथ शहरियार भट्ट मौजूद हैं। शहरियार, नई काबीना आ गए, नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, क्या उसका वेलकम दे रहे हैं, रमज़ान का वेलकम दे रहे हैं? क्यों इतना सरमाया मोहतात, इतनी सुस्त रवि क्यों दिख रही है? देखिए हमने देखा था कि जो ही इलेक्शंस के बाद से जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का खात्मा हुआ था उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया था और मार्केट में अराउंड 4000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ था। तो उसके बाद हम देख रहे हैं अब जो पाकिस्तान की मईशत के चैलेंजेस हैं, अब हुकूमत को उसको फेस करना है, खासतौर पर IMF के साथ मुज़ाकरात को लेकर आगे बढ़ना है, सब्सिडीज़ का खात्मा करना है, नए टैक्सेस लगाने हैं और साथ साथ हम देख रहे हैं एनर्जी प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। वो सारे अवामिल हैं जिसका असर अब देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी देखने में आ रहा है। अब मार्केट में लोगों ने तेज़ी की, मार्केट में ऑल द वे 64,000 इंडेक्स से जब बढ़ना शुरू हुई मार्केट, तो फिर हम देख रहे हैं मार्केट में प्रॉफिटिंग देखने में आ रही है और टेक्निकली भी हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से मार्केट 66,000 इंडेक्स के पास आकर थोड़ी रेस कर रही थी। आज एग्जैक्टली मार्केट ने 66,000 इंडेक्स करीब आने के बाद थोड़ी प्रॉफिटिंग देखने में आई है। अभी सेक्टर्स के हवाले से बता सकते हैं कौन से सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग का प्रेशर है? जी, हम देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रॉफिटिंग आ रही है जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि जब भी रिजल्ट सीजन का खात्मा होता है तो सरमायाकार अपने शेयर्स बेचते हैं जो एक्स डिविडेंड होने से पहले ताकि शेयर्स और फर्दर नीचे डाउन साइड पे लें। तो बैंकिंग में ज़्यादा सेलिंग देखने में आ रही है, इसके अलावा पावर सेक्टर में और ऑयल एंड गैस में जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ चुकी थी वहाँ भी प्रॉफिटिंग दिख रही है। जैसे शहरियार ने तफसीलन बताया, एक तो जहाँ एक इबहाम है IMF को लेके, जहाँ अगर ये सामने फ्रंट तमाम चीज़ें सामने आ जाती, नई काबीना जिस तरीके के इकदाम लेगी वो इस वक्त इंतज़ार उसका भी है। उसके बाद मार्केट एक अच्छा जो है रैली बनाती हुई आगे नजर आएगी। साथ साथ इस वक्त जो प्रेशर है क्योंकि पिछले दिनों का जो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इस वक्त आज प्रेशर है क्योंकि जो कंपनीज ने अपने रिजल्ट दिए उसके बाद अब जो है खास करके बैंकिंग सेक्टर हो, उसके साथ ऑयल एंड गैस का सेक्टर हो, रिफाइनरी सेक्टर्स हो, इसके ऊपर जो है आज प्रेशर दिख रहा है जिसकी वजह से मार्केट में अभी तक जो है 500 से ज़ायद पॉइंट्स में माइनस हो चुके हैं। जी, साबिक सदर काटी मसूद नकी कहते हैं कि बिजली और गैस के रेट इतने बढ़ गए हैं कि रीजनल ममालिक से मुकाबला मुमकिन नहीं। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। देखा जाए सनतकार शदीद परेशान है, गैस का बिल हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, कैसे अदा करेंगे, बड़े सवालात उठ रहे हैं। कोरंगी एसोसिएशन के साबिक सदर जो हैं मसूद नकी हमारे साथ मौजूद, हम जानते हैं क्या सूरत हाल है, सनतकार कितने परेशान है बिजली के बिल और गैस के बिलों से।
देखिए, सिर्फ बिजली के बिल और गैस के बिल्स का मसला नहीं है, ये पानी की फराहमी का मसला नहीं है, ये टोटलिटी में इंडस्ट्री के सर्वाइवल का मसला है। हम ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में और रीजनल कॉम्पिटिटर्स के साथ अगर इस पर्सपेक्टिव में देखें तो इस वक्त पाकिस्तान जो है ग्रोथ के हिसाब से, एक्सपोर्ट ग्रोथ के हिसाब से, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सबसे नीचे है रेटिंग में, और इंटरनेशनल मार्केट की कंडीशंस बहुत ख़राब हैं। मैं रीजनल कंट्रीज़ की हमेशा बात इसलिए करता हूँ कि वो पॉलिसीज़ एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए होती हैं और वो सक्सेसफुल होती हैं। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। हम कितने अंडर प्रेशर हैं कि हर 2-3 महीने बाद टैरिफ चेंज करते हैं, हर 2-3 महीने बाद हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी फराहमी किस तरह होगी। तो ये सारी यूटिलिटीज़ कॉस्ट पे इम्पैक्ट डालती हैं, हमारी जो अनइंटरप्टेड वर्किंग है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे इमेज के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। तो हमें करना ये चाहिए, ओगरा को, नेपरा को साथ बैठ करके, इंडस्ट्री के साथ बैठ करके एक पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए जो कम से कम 2-3 साल, 4 साल चले, और उसमें हमें अगर जो पावर प्लांट वाले जो उनको रिव्यू करना है, उनके जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रिव्यू करना है, हमें कोई सब्सिडी वहाँ पे डालनी है, तो हमें ये पॉलिसीज़ का मसला है। वरना रोज़ाना हम ये बात करते रहेंगे, कॉस्ट बाहर हो जाएगी, रेपुटेशन और इमेज ख़राब होता चला जाएगा, और जो फ्रस्ट्रेशन इंडस्ट्री की है, जो ग्रोथ की, एक्सपेंशन की, इवन सस्टेन करने की जो अभी इस वक्त है, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल आप देखें पिछले कई सालों से एक जैसी हो गई है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, ग्रोथ चल रही होती है। तो हम इस वक्त, हमारे ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज़ पे काम करना चाहिए। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ बड़ा मुतालबा किया है कि हुकूमत जो आई है वो लंबे अरसे की प्लानिंग करे, ऐसी बनाए जिससे इंडस्ट्रीज चल सके। जी।